must introduce Dr. Lakshmi. First, before I say anything about her professional achievements, I must introduce her as my best friend and colleague from JJ Hospital. And I think she has she is currently medical director. Even I can't read it well, but please bear with me. Medical Director, Shrikhande Fertility Clinic, Chairperson Designate, ICOG 2020, National Corresponding Editor. I had a wonderful time with her when I was the Editor-in-Chief. She has done exemplary work in our Journal of OBGYN of India. She's also Senior Vice President. She was Senior Vice President in 2012. And her achievements are so many, and she has received so many awards and so many honors that if I start reading, I think the whole seminar will be of her achievements. So I think I'll stop here, and I will ask my co-chairperson if Dr. Anita or anyone is there, then they can take over and introduce the topic that she is covering. Are they there? I think, ma'am, you continue, because I'll find out if they have joined. Ma'am, they have not joined, I think. Priyankur, let me start, and both of them are very eminent gynecologists and with a lot of social work. They can conclude and give their expert comments on whatever point I have missed. So Suvarna, thank you so much for your generous introduction. Thank you. At the outset, I must appreciate the enthusiasm and passion of our HIV committee chairperson, Dr. Anju Soni. I think Anju called me 2 months back that she wants to do a program on youth safety because it is the theme of our national president, Dr. Alpesh Gandhi. And friends, Alpesh has really done a lot of work on this theme. So since last 2 months, me and Anju, we are doing brainstorming sessions. I am happy that we come out with this program. We decided on the topics, we decided the faculty, and I am so happy and thankful to all the faculties that they agreed on just one WhatsApp and one phone call from Anju. So here we are, and we are happy to deliver this program on youth safety to all of you. Since morning, I am listening to Jaideep, to Mr. Yashovardhan on physical, mental, and spiritual health. Now it's time, friends, for the youth to discuss about the mental health. यहाँ पर बहुत सारे youth हमसे जुड़े हुए हैं, और आज जिस विषय पर मैं बात करना चाहती हूँ वो है एडिक्शन. तो दोस्तों, एडिक्शन किसे कहते हैं? ये पैथोलॉजिकल लव रिलेशनशिप है विथ एनीथिंग. इट कैन बी विथ फूड. दिस पैथोलॉजिकल लव रिलेशनशिप कैन बी विथ एनी केमिकल, और दिस पैथोलॉजिकल लव रिलेशनशिप कैन बी विथ एनी एक्टिविटी. तो क्या क्या हो सकते हैं? ये हमारा एडिक्शन इंटरनेट को हो सकता है, सेलफोन एडिक्शन है, ड्रग्स को हो सकता है, स्मोकिंग और अल्कोहल. मुझे पता है कि कोई भी यूथ इसमें से कोई भी चीज ये सोच के चालू नहीं करता है कि वो इसको एडिक्ट हो जाएगा. वो तो क्यूरियोसिटी में चालू करता है, वो तो एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, या कई बार पीयर प्रेशर में आकर चालू कर देता है. पर ये जो सब्सटेंसेस है या एक्टिविटीज है, इनकी ऐसी ब्रेन ऑल्टर करने की प्रॉपर्टीज होती है कि अगर आप इसको 2-4 बार लेते हैं तो धीरे धीरे आप अपना मानसिक संतुलन, अपना कंट्रोल खोना चालू कर देते हैं, और धीरे धीरे आप इन चीजों के व्यसन के शिकार हो जाते हैं. तो इसीलिए कहते हैं कि पहली बार ही आपने शुरू नहीं करना चाहिए. जो सबसे ज्यादा चिंता का विषय है हमारे यूथ के लिए, स्मोकिंग और अल्कोहल से भी बड़ा, वो है इंटरनेट एडिक्शन. ये क्या है दोस्तों? इंटरनेट एडिक्शन एक बिहेवियरल एडिक्शन है जहां पर इंसान इंटरनेट यूज के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है. और साउथ कोरिया ऐसा देश है जहां पर इंटरनेट एडिक्शन को नेशनल हेल्थ प्रॉब्लम घोषित किया गया है. इंटरनेट एडिक्शन के कई प्रकार हैं. सबसे जो अहम 3 प्रकार है वो है वीडियो गेम एडिक्शन, साइबर सेक्स एडिक्शन एंड ऑनलाइन गैम्बलिंग एडिक्शन. सबसे बड़ा इसका जो साइड इफेक्ट है दोस्तों वो है साइबर बुलिंग.
बोथ एज अ विक्टिम कि आप कोई आपके ऊपर बुलिंग कर रहा है, या एज अ परपेट्रेटर कि आप किसी और को साइबर बुलिंग कर रहे हो। सबसे डेंजरस टाइप ऑफ बुलिंग है, बिकॉज साइबर बुलिंग कैन बी डन एनोनिमसली। आपको नहीं पता है कि कौन आपको बुली कर रहा है एंड आप उसके शिकार हो जाते हो। बहुत सारे मीडियम जैसे ईमेल, टेक्स्ट मैसेजिंग, फेसबुक, ये माध्यम होते हैं साइबर बुलिंग के। साइबर बुलिंग में क्या होता है? थ्रेट्स ऑफ वायलेंस, वर्बल अब्यूज, स्प्रेडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, ये कई प्रकार हैं जिसमें आप साइबर बुलिंग के शिकार हो सकते हो। ये अपने आप में बहुत बड़ा और गहन विषय है, पर जस्ट एक स्लाइड इसके ऊपर मैं जरूर डिवोट करना चाहूंगी कि स्टूडेंट्स और यूथ क्या कर सकते हैं साइबर बुलिंग के बारे में। सबसे पहला तो है कि डोंट एंगेज द बुली। अगर आप उसको एंगेज करते हो तो उसके ईगो को बढ़ावा मिलता है और वो और बुली करता है। अगर आप एंगेज नहीं करते हो तो यू कैन होप कि दिस बुलिंग विल डाई डाउन इट्स ओन डेथ। यू डोंट हैव टू शेयर योर सीक्रेट्स। ये यूथ के लिए सबसे अहम मैसेज है मेरा कि आप अपनी प्राइवेसी सोशल मीडिया पर शेयर ना करें, क्योंकि जब भी आप अपना कुछ भी प्राइवेट लाइफ शेयर करते हैं तो डू थिंक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस। कहीं पर कितना भी प्राइवेसी सेटिंग आप कर ले, नथिंग रिमेन्स प्राइवेट वंस यू शेयर दैट ऑन द सोशल मीडिया। डोंट रिस्पॉन्ड टू और फॉरवर्ड द साइबर बुलिंग मैसेजेस। जब भी कोई आपको साइबर बुलिंग कर रहा है तो डर के मारे वो मैसेजेस को डिलीट ना करें। रिकॉर्ड रखें कि आपको कौन साइबर बुलिंग कर रहा है, क्या डेट है, क्या टाइम है, साइबर बुलिंग में आपको क्या कहा गया है। और ये सारे साइबर बुलिंग के केसेस अगर आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, तो अपने टीचर्स को रिपोर्ट करें, अपने पेरेंट्स को रिपोर्ट करें। और हर जगह साइबर सेल है फ्रेंड्स। आप ऑनलाइन साइबर सेल में जाके साइबर बुलिंग की कंप्लेंट कर सकते हैं। आपको फिजिकली पुलिस स्टेशन में जाने की भी जरूरत नहीं है। तो डरे नहीं, अगर कोई आपको साइबर बुलिंग कर रहा है तो साइबर सेल में आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। इंटरनेट एडिक्शन के क्या प्रकार होते हैं? रादर सारे ही एडिक्शंस के बेसिकली 4 प्रकार होते हैं। एक तो उसका एक्सेसिव यूज। हमें स्मोकिंग और अल्कोहल का क्वांटिटी पता है कि एक्सेसिव यूज किसे कहते हैं, पर इंटरनेट में आप एक्सेसिव यूज किसे कहेंगे? क्योंकि अगर मैं भी मेरे बच्चों को कहती हूँ कि अरे आप दिन भर से मोबाइल पे हो, तो मम्मी हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे तो नोट्स हैं, हमको तो नेट सर्च कर रहे हैं। तो व्हाट इज एक्सेस? इंटरनेट पे कोई भी नहीं बता सकता है। ये आपको खुद को डिसाइड करना होता है कि व्हाट इज एक्सेसिव इन योर केस। दूसरा, इसके विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं कोई भी एडिक्शन के, इवन इंटरनेट एडिक्शन के भी होते हैं। अगर कहीं पर आप जा रहे हो, वाईफाई कनेक्टिविटी नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तो आप चिड़चिड़े हो जाते हो, आपको गुस्सा आने लगता है, ये विड्रॉल सिम्टम है। तीसरा है टॉलरेंस। आज आप आधी घंटा वीडियो गेम खेल रहे हो नेट पे, कल आप 1 घंटा खेलोगे। सिमिलरली विद अल्कोहल, विद स्मोकिंग, कि आप धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ाते जाते हो, जिसको कहते हैं टॉलरेंस। यानी उतने ड्यूरेशन में उतनी क्वांटिटी को आप टॉलरेट हो जाते हो और वो क्वांटिटी बढ़ने लगती है। चौथा है, कोई भी एडिक्शन हो उसके निगेटिव रिपरकशंस जरूर हैं, और इंटरनेट एडिक्शन के तो बहुत ज्यादा निगेटिव रिपरकशंस है। जैसे आपके ऑफलाइन पर्सनल रिलेशनशिप सफर होती हैं, आपकी नींद पर इसका असर होता है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपका परफॉर्मेंस नीचे जाने लगता है, स्कूल में आपके ग्रेड्स नीचे आने लगते हैं, आपके फाइनेंसेस अफेक्ट होने लगते हैं। पर इसके अलावा फिजिकल साइड इफेक्ट्स भी होते हैं इंटरनेट एडिक्शन के। अगर आप हमेशा लैपटॉप पे हो तो आपको कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है, ड्राई आईज, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली स्क्रीन देख रहे हो, चाहे वो मोबाइल की हो, चाहे लैपटॉप की हो, चाहे डेस्कटॉप की हो। बैकएक, क्योंकि आपका पोस्चर अफेक्ट हो रहा है। हेडेक, आपका खाना पीना अनियमित हो जाता है, आप अपनी पर्सनल हाइजीन की तरफ ध्यान देना कम कर देते हो। और ऑफ कोर्स ये सारी चीजें आपकी नींद को जरूर अफेक्ट करती है। तो इसके वार्निंग साइंस क्या है यूथ के लिए, पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए? क्योंकि हमें ये समझ में आना चाहिए कि हमारा यूथ एक्सेसिव यूज कर रहा है इंटरनेट को, या दैट यूथ इज गोइंग टुवर्ड्स इंटरनेट एडिक्शन। सबसे पहला है प्री ऑक्यूपेशन विद द इंटरनेट। हर वक्त
आपका बच्चा इंटरनेट में ही लगा हुआ है, आपका बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है, मूडीनेस है, डिप्रेशन है, जहां पे भी आप इंटरनेट कम करने की बात करते हो उसमें ये सब चीजें हो रही है। ऑनलाइन वो हमेशा रहता है, आपके रिलेशनशिप्स अफेक्ट हो रहे हैं, आप उसको पक्का अपने थेरेपिस्ट के पास लेके जाए। फ्रेंड्स, हर स्कूल में काउंसलर्स होते हैं, हर कॉलेज में काउंसलर्स होते हैं। बेसिकली कोई भी प्रकार का जो एडिक्शन है वो एक एस्केप का माध्यम होता है वो यूथ के लिए, अपने दैनंदिन जीवन में जो उसको परेशानियां हो रही है, पढ़ाई की हो, जॉब की हो, हेल्थ की हो, पीयर प्रेशर की हो, वो सबसे वो भागना चाहता है और वो कहीं ना कोई एडिक्शन का शिकार हो जाता है। जानबूझकर नहीं होता है, पर ये उसका तरीका है, इसको बोलते हैं एस्केपिज्म। तो वो एस्केप करना चाहता है। सेल फोन इंटरनेट एडिक्शन का एक बहुत बड़ा माध्यम है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा यूथ हमारे सेल फोन पे ही लगे होते हैं। इसके अपने अलग से प्रॉब्लम्स है, यानी इंटरनेट एडिक्शन के अलावा इसके भी प्रॉब्लम्स है। हेलुसिनेशंस, जब फोन की घंटी नहीं बज रही है तो भी आपको सुनाई आ रहा है, आपके दोस्तों के साथ रिलेशनशिप सफर हो रहे हैं। पर जो सबसे बड़ा इसका दुष्परिणाम है फ्रेंड्स, वो है एक्सीडेंट्स। आप देख रहे हो, मैंने फिगर में भी दिखाया है कि आप रोड क्रॉस कर रहे हो तो भी लोग मोबाइल में देखते हुए रोड क्रॉस कर रहे हैं। तो आप कोई भी दुर्घटना का शिकार हो सकते हो। आप बाइक चला रहे हो, आप कार चला रहे हो, आपके सारे नोटिफिकेशन ऑन है, एक नोटिफिकेशन आया कि आपकी आंखें फोन की तरफ चले जाती है एंड विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड आप दुर्घटना के शिकार हो जाते हो। तो सबसे बड़ा मोबाइल फोन का जो दुष्परिणाम है वो है एक्सीडेंट्स। चलते वक्त, ड्राइविंग करते वक्त प्लीज मोबाइल का उपयोग ना करें। क्या आपको पता है कि जितने भी हमारे सेलिब्रिटीज है या जिन्होंने ये सब टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन किया है फ्रेंड्स, उन्होंने अपने ही बच्चों को ये टेक्नोलॉजी से एक सही एज होने तक दूर रखा है। स्टीव जॉब्स ने अपने बच्चे को आईपैड नहीं दिया था। बिल एंड मेलिंडा गेट्स ने अपने बच्चे 14 साल के होने तक उनको मोबाइल फोन नहीं दिया था। मुझे पता है इंडिया में ये हमारी मजबूरी है कि हमें फोन देना पड़ता है, क्योंकि हमारे बच्चे ट्यूशन क्लास जाते हैं, ऑड आवर्स में जाते हैं, तो उनकी सेफ्टी के लिए हमें मोबाइल फोन देना होता है। पर एज अ पेरेंट ये हमारी जवाबदारी है कि वो एडिक्ट ना हो, इसकी तरफ हमें एक्स्ट्रा ध्यान देना है। सबसे पहले तो आपको सारे नोटिफिकेशंस ऑफ करना है। चलते वक्त, रोड क्रॉस करते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त, पढ़ाई करते वक्त सारे के सारे नोटिफिकेशंस आप ऑफ करेंगे। एक ट्रैकिंग ऐप है मोमेंट नाम का, जिससे आप पता कर सकते हैं कि दिन भर में आपका स्क्रीन टाइम क्या था और आप अपने आप उसको वॉलंटरीली कट डाउन कर सकते हैं। एंड तीसरा फ्रेंड्स, आई नो बहुत सारे यूथ मोबाइल फोन में अलार्म लगा के सोते हैं क्योंकि सुबह जल्दी उठना है, ट्यूशन को जाना है। तो प्लीज अपने बेडरूम से मोबाइल फोन को हटा दें और एक सही में अलार्म क्लॉक खरीदें और अलार्म क्लॉक का इस्तेमाल करें अलार्म के लिए। ये हो गया हमारा इंटरनेट और सेल फोन एडिक्शन। स्मोकिंग रैम्पेंट है, हमारे यूथ में बढ़ रहा है। इसके साइड इफेक्ट्स हर यूथ को पता है, पर इसमें सिर्फ एक पॉइंट में बताना चाहूंगी कि पैसिव स्मोकिंग भी उतनी ही हार्मफुल है। यानी आप कहीं बैठे हो जहां पर आपका फ्रेंड स्मोकिंग कर रहा है और आप बाजू में बैठे हो, तो वो जो धुआं छोड़ रहा है वो जितना उसके लिए हानिकारक है उतना आपके लिए भी हानिकारक है, क्योंकि आप उसे इनहेल कर रहे हो। तो इसलिए ऐसे जगह से दूर रहें जहां पर लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, क्योंकि पैसिव स्मोकिंग इज ऑल्सो इंजूरियस टू हेल्थ। अब आते हैं हम अल्कोहल पे। अल्कोहल के भी साइड इफेक्ट्स आई एम श्योर हर बच्चे को, हर यूथ को पता है। क्यों चालू करते हैं बच्चे? फिर से वही स्ट्रेस, पीयर प्रेशर, या फिर रिबेल करना चाहते हैं पेरेंट्स को। पेरेंट्स ने बोला नहीं लो, स्मोकिंग नहीं करो, अल्कोहल नहीं लो, तो दे वांट टू रिबेल एंड दे जस्ट वांट टू टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट। और सबसे दुख की बात यह है दोस्तों कि बियर और वाइन को सोशल मीडिया ने ऐसा प्रोजेक्ट किया है कि ये अल्कोहल की कैटेगरी में नहीं आते हैं। ये गलत है। बियर और वाइन भी अल्कोहल की कैटेगरी में आते हैं। अगर आप इसका रेगुलर सेवन करोगे
तो आप इसके एडिक्ट हो सकते हो। तो बियर और वाइन भी आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। हमारे एडोलेसेंट, हमारे यूथ ड्रग, अल्कोहल, स्मोकिंग क्यों इसको चालू करते हैं, क्यों एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं? पहला रीजन होता है पीयर प्रेशर, उनको वो ग्रुप में फिट होना होता है जो लोग ये सब का सेवन कर रहे हैं, बिकॉज वो उनको देखते हैं, दे परसीव देम एज अ कूल ग्रुप और एज अ कूल पर्सन, जो कि गलत है। हमारा यूथ खुद के बारे में अच्छा महसूस करना चाहता है, क्योंकि कई यूथ को सोशल एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, पढ़ाई का टेंशन होता है, बहुत ज्यादा उनके ऊपर पेरेंटल प्रेशर होता है, तो वो सब चीजों से वो बाहर आना चाहते हैं। इसके लिए भी वो ये सब चीजों की तरफ मुड़ जाते हैं। बेटर करना है, जैसा कि मैंने कहा, इवन सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है कि आप ड्रग्स लो और एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। दोस्तों, ये गलत है। मुझे पता है बहुत सारे सीरियल्स में मैंने भी देखा है कि यूथ ग्रुप में दिखाया जाता है कि आप फला ड्रग ले लो, फला ड्रग ले लो, आपकी मेमोरी तेज हो जाएगी, आप एग्जाम में अच्छा लिख पाओगे। ये बहुत गलत चीज है। आपको ये चीजों पे विश्वास नहीं करनी है और इनमें से किसी का भी सेवन नहीं करना है। चौथा जो रीजन होता है, हमारा यूथ एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, उसको बहुत क्यूरियोसिटी होती है हर चीज के बारे में, तो वो एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में कब उसका आदी हो जाता है उसे खुद ही नहीं समझ में आ जाता है। हमारे इतने सारे सेलिब्रिटी डेथ्स हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एडिक्शन। द यूथ कैन आइडेंटिफाई विथ दीज सेलिब्रिटीज, दे ऑल हैव डाइड, they were at the peak of their careers, but they could not control their addictions and they died because of their drug addictions. So what are the risk factors and what are the protective factors? This slide is very important for the youth. I know it's not visible that clearly. For the youth, for the parents and for the teachers. हमेशा याद रखें कि वो कौन से यूथ होते हैं कि जो ये सब एडिक्शन की तरफ जाने की संभावना ज्यादा है। वो है अगर आपका घर का माहौल बहुत अशांत है, पेरेंट्स हमेशा आपस में लड़ रहे हैं बच्चों के सामने, ये एक रिस्क फैक्टर है। अगर आपके बच्चे के साथ में आपके अच्छे रिलेशन नहीं है, यानी भावनात्मक तौर से आप जुड़े हुए नहीं हो, आप सारी डिमांड सिर्फ भौतिक रूप से पूरी कर रहे हो, चल मेरा पीछा छोड़, मुझे तो अभी किटी पार्टी में जाना है, चल मेरा पीछा छोड़, अच्छा ये एक चॉकलेट ले ले, ये पेरेंटिंग गलत है। एग्जाम में बच्चा फेल हो गया है, उसे आपके मॉरल सपोर्ट की जरूरत है। अगर वो फेल हो गया है और उसे डर लग रहा है कि मेरे पेरेंट्स मेरे ऊपर चिल्लाएंगे, ये एक रिस्क फैक्टर है कि आपका बच्चा गलत डायरेक्शन में जा सकता है। बच्चे की पुअर सोशल कोपिंग स्किल्स है, क्योंकि आप बच्चा देख देख के सीखता है। अगर घर में वो देख रहा है कि कोई भी स्ट्रेस को मेरे पेरेंट्स कैसे कोप कर रहे हैं, अगर आप अच्छे से कोप नहीं कर पा रहे हो लाइफ के छोटे मोटे स्ट्रेस, तो आपका बच्चा आपको देख के पुअर सोशल कोपिंग स्किल्स को सीख रहा है। पीयर प्रेशर, आपको देखते रहना है कि आपका बच्चा किससे मिक्स हो रहा है, कौन उसके फ्रेंड्स है, किससे बात कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना ही है। और अगर घर में सब्सटेंस अब्यूज हो रहा है, घर में बच्चा देख रहा है कि पेरेंट्स अल्कोहल ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, तो नेचुरली आप वो बच्चे को टीचिंग नहीं कर सकते हो। प्रोटेक्टिव फैक्टर्स क्या हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। अगर आपकी फैमिली में बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड्स है, यानी भावनात्मक रूप से आप अपने बच्चे से बहुत अच्छे से जुड़े हुए हो, आपने बच्चे को ये कॉन्फिडेंस दिया है कि बेटा आई एम योर फ्रेंड, कहीं पर कभी भी कुछ भी हो जाए, आई एम देयर फॉर यू, आओ आप मुझे कन्फाइड करो। मुझे पता है ये बहुत मुश्किल है, पर एज ए पेरेंट आपको ये कॉन्फिडेंस अपने यूथ में डेवलप करना ही है। आपको क्लियर एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। आई एम श्योर एक्सपेक्टेशन जरूर रखे बच्चे से, पर इतने हाई नहीं रखे कि बच्चा उसको कोप नहीं कर पाए। कंपैरिजन ना करे बिटवीन टू सिबलिंग्स। अगर बहुत ज्यादा एकेडमिक प्रेशर है तो ये बच्चे के लिए अच्छी बात नहीं है। बच्चे को शुरू से बताएं कि ड्रग्स, अल्कोहल, स्मोकिंग के आपके घर में, आपके फैमिली में क्या नॉर्म्स है। सो याद रखें, कोई भी एडिक्शन हो, एज ए टीचर, एज ए पेरेंट, हम लोग डेफिनेटली वरीड है, क्योंकि उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सेक्सुअल हेल्थ। डॉक्टर अंजू सोनी ने बहुत अच्छे से बताया है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, HIV, एड्स, एक्सीडेंट्स, सुसाइड्स, होमिसाइड्स, क्योंकि इट अफेक्ट्स योर हेल्थ।
सो फ्लैग साइंस क्या है फ्रेंड्स? मैंने साइड इफेक्ट्स बता दिए, एडिक्शंस क्या क्या है बता दिए, पर हमारे एंटेनास कब खड़े होने चाहिए? जब आप बच्चे के रूम में जा रहे हो और आपका बच्चा वो स्मेल जो सिगरेट और अल्कोहल का है इसको मास्क करने की कोशिश कर रहा है, लाइक फ्रीक्वेंट रिंसिंग, फ्रीक्वेंट वॉशिंग, इलायची खा रहा है, परफ्यूम का ज्यादा यूज कर रहा है, डिओडोरेंट यूज कर रहा है, चीविंग मिंट है उसके मुंह में हमेशा, दिस इज वन ऑफ द फ्लैग साइन। आपके एंटेना खड़े हो जाने चाहिए। जब वो आपसे बात कर रहा है, आपका बच्चा आई कांटेक्ट और आपसे हग अवॉइड कर रहा है, बच्चे के सडनली न्यू सेट ऑफ फ्रेंड्स उसकी लाइफ में आ गए हैं, बच्चा खुद को सोशली आइसोलेट करना शुरू कर रहा है, उसका स्कूल और जॉब में परफॉर्मेंस कम होने लगा है, वो अपनी हाइजीन की तरफ कम अटेंटिव हो गया है, उसका खाने पीने की तरफ ध्यान कम हो गया है, उसका मूवीज के लिए जो प्रेफरेंस था वो सडनली चेंज हो गया है। पहले फैमिली वाली मूवीज देखता था, सडनली एक्शन और कुछ अलग मूवीज देखने लगा है। यू हैव टू बी अलर्ट। अनएक्सप्लेन्ड इरिटेबिलिटी है, पहले अच्छा खासा था, अभी एकदम से चिड़चिड़ करने लगा है, टॉयलेट में एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड कर रहा है आपका बच्चा, प्लीज बी अलर्ट। घर से छोटी मोटी चीजें गायब हो रही है, वॉलेट से पैसे गायब हो रहे हैं, प्लीज बी अलर्ट। सो दीज आर द फ्लैग साइंस वेयर यू हैव टू टेक एक्शन। आपको अपने बच्चे में पॉजिटिव डिसिप्लिन इनकलकेट शुरू से करनी है। कैसे करेंगे? सिर्फ प्रीचिंग करके नहीं होता है। रिमेंबर, यू आर द रोल मॉडल्स एज अ पेरेंट, एज अ टीचर। आपको अपने बच्चे को, अपने विद्यार्थी को अच्छे से पहचानना है। ट्रीट देम विथ रिस्पेक्ट। बाप कौन है? मैं कि तू, माँ कौन है? मैं कि तू, टीचर कौन है? ये जमाना गया। ट्रीट देम विथ रिस्पेक्ट, डोंट ह्यूमिलिएट देम, गिव देम, withdraw their certain privileges if they misbehave। पर आपको मारना, ह्यूमिलिएट करना, रिडिक्यूल करना, टॉन्ट करना, that too in front of everybody, in front of siblings, in front of class, in front of other students, in front of other teachers, just not acceptable। अगर स्कूल में किया है उसे आप अलग से बुलाइए, अलग से समझाइए कि बेटा आपका ये बिहेवियर गलत था। बॉडी लैंग्वेज की तरफ हमेशा ध्यान रखिए बच्चे के, उसे घर काम में, स्कूल की एक्टिविटीज में एक्टिवली इन्वॉल्व करिए। कहीं कोई गलती हो जाती है उनसे तो यू हैव टू बी फेयर, कंसिस्टेंट एंड कूल। यू आर नॉट सपोज्ड टू लूज योर टेम्पर। जस्ट हैंडल द सिचुएशन इन अ काम एंड कूल मैनर and have a positive attitude yourself. What you are not supposed to do, I have already covered few points, that don't humiliate them in front of others, don't judge them, please, don't label them, don't give excuses। बच्चा आपका समय मांग रहा है और आप उसको कुछ तो भी एक्सक्यूजेस दे रहे हो, हमेशा प्रीच कर रहे हो माय वे इज द बेस्ट। रूल्स होने चाहिए पर इतने रिजिड नहीं कि बच्चा उसको ब्रेक करने के लिए सोचे या रिबेल करने का सोचे। कांस्टेंट कंप्लेनिंग, क्रिबिंग ना करे वो बच्चे के पीछे। कांस्टेंट मॉरलाइजिंग, प्रीचिंग बिल्कुल भी ना करे। गिव देम रियलिस्टिक लाइफ एक्सपेक्टेशंस। सो आप अपने बच्चे को ये सब एडिक्शन से दूर कैसे रख सकते हैं? एक्टिव करें। रिस्पेक्ट योरसेल्फ। यूथ आपके लिए भी है ये कि आपको एक्टिव रहना है, काउच पोटैटो नहीं बनना है। You have to respect yourself। अगर आप खुद को ही रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो how can you expect the teachers and your peers to respect you? Seek positive acceptance from your colleagues and your pressure। ड्रग्स और अल्कोहल आपको पॉजिटिव एक्सेप्टेंस नहीं दिलाएंगे, ये बहुत ही शॉर्ट टर्म चीजें हैं लाइफ में, पर अगर लॉन्ग टर्म चाहते हैं तो स्टे अवे फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। हैव योर ओन वैल्यूज। जरूरी नहीं है कि आपके पीयर ग्रुप में आप पार्टी में गए हो, सब लोग बियर का ग्लास ले रहे हैं तो आपको भी बियर ही लेना है, बिल्कुल नहीं। आप कोक भी लेकर बैठ सकते हो। तो आपको अपने लाइफ के वैल्यूज सेट करने हैं, अपने लाइफ के गोल्स आपको सेट करने हैं। और अगर कभी आपको लगता है कि नहीं आपके कदम गलत दिशा में चल पड़े हैं तो प्लीज सीक हेल्प। डोंट शाय अवे फ्रॉम सीकिंग हेल्प। पेरेंट्स से अच्छे रिलेशन है उनमें कन्फाइड करें, टीचर से है उनमें करें, काउंसलर से है उनसे करें। बहुत सारे नेट पे हेल्पलाइंस चलती हैं यूथ के लिए। अगर आप एनोनिमस रहना चाहते हैं, आप स्कूल काउंसलर को भी नहीं कन्फाइड करना चाहते हैं तो एनोनिमस हेल्पलाइंस चलती है यूथ के लिए, आप वहां जाकर हेल्प सीख करें, पर हेल्प जरूर ले। ड्रग्स और एडिक्शन से दूर रहने के लिए आपको
दूसरे लोगों में मिक्स होना है या उन्होंने आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, इसके लिए अगर ले रहे हैं तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर आप जिंदगी के गमों और परेशानियों से भाग रहे हैं तो ये उसका सोल्यूशन नहीं है। अगर कोई परेशानी है तो आपको अंदर से स्ट्रेंथ, अंदर से रिसोर्सेस, मिस्टर यशोवर्धन ने अभी इतने अच्छे तरीके से हमें समझाया है कि आप यूथ है, स्पिरिचुअलिटी डेवलप करें। स्पिरिचुअलिटी यानी सब छोड़ के संन्यास लेना है, ऐसा नहीं है। अपने थिंकिंग पैटर्न में स्पिरिचुअलिटी लेकर आए, तो अंदर से खुद को स्ट्रांग बनाएं और हमेशा एक फिजिकल फ्रेंड्स का अच्छा सर्कल रखें, ना कि ओनली सोशल और सोशल मीडिया फ्रेंड्स का। आपके फ्रेंड्स, आपके टीचर्स, आपके कॉलीग्स, आपके कजिन्स, आपका पीयर प्रेशर, फिजिकल इतना अच्छा ग्रुप होना चाहिए कि आप अपनी परेशानियां उनसे बांट सके। ये जो पावर मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग है, ये हर एक की लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। P इज फॉर पावर, जहाँ पे है कि P इज फॉर प्रॉब्लम, स्टॉप एंड आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। जब तक आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि मेरी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम है, आप कैसे उसके खुद की हेल्प करेंगे या दूसरों की हेल्प लेंगे उसको सॉल्व करने में। सो आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम। O इज फॉर ऑप्शंस, कि ये प्रॉब्लम है मुझे, इसके ऊपर क्या ऑप्शंस है। जो ऑप्शंस है, W इज फॉर वे, यू हैव टू वे द प्रॉज एंड कॉन्स। जितने भी आपको ऑप्शंस नजर आ रहे हैं उसका फायदा और नुकसान आप देखें। E इज फॉर इलेक्ट, उसमें से एक ऑप्शन आपको चूज करना है एंड रिफ्लेक्ट, कि भाई आपने जो ऑप्शन चूज किया है उस पे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको इससे जिंदगी में क्या राहत महसूस होगी। तो ये पावर मोड आप अपने जिंदगी में आत्मसात करें। फ्रेंड्स, I will say prevention, prevention and prevention. Primary prevention towards any addiction is the best thing. तो हमारा यूथ जो सुन रहा है, आप खुद को एडिक्शन से दूर कैसे रख सकते हो? By remaining active. आपकी जो भी हॉबीज है, स्पोर्ट्स है, बच्चे सिर्फ दिन भर घर में मोबाइल में लगे रहते हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, प्राइम वीडियो है, तो ऑल डोंट नो कि हाउ मेनी चैनल्स आर देयर। पर कुछ फिजिकल स्पोर्ट्स खेले, बाहर जाएं, ग्राउंड में जाएं, अपने लिए कुछ हॉबीज रखें, स्ट्रेस बस्टर फ्रेंड्स रखें और जिंदगी में हमेशा एक गोल रखें, क्योंकि अगर गोल रहेगा तो आप अपने रास्ते से नहीं भटकोगे। बाय चांस भटक गए हो तो सेकेंडरी प्रिवेंशन। भटक गए हो तो हमें एंड स्टेज तक नहीं जाना है कि हम एकदम ही एडिक्ट हो गए हैं। आपको मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, एडोलेसेंट हेल्थ क्लिनिक्स चलाते हैं वो लोग, और जैसा मैंने कहा हेल्पलाइंस होती हैं आपके मदद के लिए, और साइबर क्राइम के लिए ऑनलाइन एनोनिमस साइबर सेल्स चलते हैं जिसपे आप क्राइम रिपोर्ट कर सकते हो। तो हिम्मत ना हारे, अगर किसी कारणवश आप गलत दिशा में चले भी गए हो तो आपको डी एडिक्शन की तरफ कदम पक्का बढ़ाना है। यू हैव टू पुट इट आउट बिफोर इट पुट्स यू आउट। सो प्लान्स रखें, एक्सरसाइज करें, गोल्स रखें, लाइफ स्किल्स को आत्मसात करें, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल हेल्थ की तरफ ध्यान दें। कहीं लाइफ में कोई अड़चन आ जाए तो स्टक अप ना करें, यूज योर डाइवर्शंस टू रीच द गोल। सो फ्रेंड्स, एडिक्शन के जंजीरों में खुद को लॉक ना करें। अगर किसी वजह से आप लॉक हो गए हैं तो उसे तोड़ने का प्रयास करें, एंड आई एम श्योर यू ऑल कैन unlock those chains. I wish all the very best to all the youths who are listening to my talk, and thank you so much for your patient listening. Thank you.